So it's a victorious welcome once again, and we are a world champions in T20. So here we will discuss about a support staff, superb support staff of Team India, which provided a guidance and important tips to win the matches during the World Cup and especially the final one. So first of all, I would like to share the support staff. Head coach, our greatest and respected Honorable Rahul Dravid, and batting coach Vikram Rathod, Paras Mahambre, the bowling coach, and their crew and so many support staff there. So first of all, I would like to salute the support staff, and Rahul Dravid has finally won the trophy, ICC trophy, ICC World T20 24 as a coach now. In 2007, if you remember, it's a very bad memory, it's a worst memory when India exit at 50 over World Cup, and it was so many criticism was going on there, and it was upset. It was a really upset for Indian fans and also for Rahul Dravid because he was a captain. But after a long time, you can say, after a 17 years, India have achieved the his under his coaching achieve his trophy, ICC trophy, and he was so excited and emotional as well. We have seen so many occasions in celebrations, and generally he has been a cool, calm, and very serious person. But sometimes when he has come out as a uh, means if you want to see as a emotional, whether it is a happy moment, whether it is a serious moment, so the expression you cannot generally see on the face of Rahul Dravid, I mean to say. So it was a really cherished moment for him, and during the World Cup, he has taken a greatest decisions during the matches. What type of combination Rohit and Dravid has really ticked all the boxes, and what combination India went. Sometime expert has criticized this combination would not be work, but the four spinners theory has been done, especially in the Super 8 games in West Indies. The first phase of the World Cup, India was looking tricky. It was looking something was fishy, especially the match against the Pakistan when India rolled out just 119. But it was a very good move of Achar Patel, and India used very well Achar Patel in the middle overs when needed a accelerate the India's innings, when needed a wickets. India always gone to the service of a Achar Patel, as well as all the players have up the hands and took the responsibility in this World Cup. So it's a very cherished moment, और आप कह सकते हैं कि राहुल द्रविड़ के लिए क्या वह लम्हा रहा होगा, क्योंकि 2007 मुझे अच्छी तरीके से याद है जब वो वेस्ट इंडीज़ में ही कोच कैप्टन बनकर आए थे, तो भारत बहुत बुरी तरीके से बाहर हुआ था, लेकिन कोच के रूप में उन्होंने ये ट्रॉफी जीती, एंड ही हैज़ बीन अ वेरी हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, स्पेशली व्हेन इंडिया वन। और वो आपने मोमेंट ज़रूर देखा होगा सेलिब्रेशन का, जब इंडिया ने ट्रॉफी जीती उन्होंने इस तरह से चेयर्स किया था, तो बहुत ही काबिल तारीफ़, और इस तरीके के कोच को कंटिन्यू करना चाहिए था मेरे हिसाब से चैम्पियंस ट्रॉफी तक का, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी में अब ज़्यादा समय है नहीं, लेकिन उन्होंने पहले ही चूँकि अनाउंस कर दिया था, वो 2023 में ही वो छोड़ना चाहते थे, और उन्होंने एक सीक्रेट बताया कि वो 2023 से आगे कोचिंग नहीं करना चाहते थे टीम इंडिया की, बट रोहित शर्मा ने जब उन्हें फ़ोन किया कि नहीं आप कंटिन्यू करिए, और एक और वर्ल्ड कप है अगले 6 महीने में, और हम इस बार जीत सकते हैं, हमारे पास अच्छा टीम है, हमारे पास पिचेस वहाँ की काफ़ी हेल्पफुल है, हमारे पास अच्छे स्पिनर्स हैं। तो फिर राहुल द्रविड़ ने आगे कंटिन्यू किया, और ही
he has accepted in the Vijay Parade at Wankhede Stadium. It's a ceremony, celebration ceremony. It has been one of the best calling phone call for my life, and इट हैज़ बीन रियली रियली गुड। तो अब आगे क्या, और आगे राहुल द्रविड़ इसके बाद तो फिर अपने घर चले जाएंगे, और इसके बाद भारतीय टीम को एक नया कोच चाहिए। वीवीएस लक्ष्मण जिम्बाब्वे जाएंगे, जो 5 T20I की सीरीज़ है, लेकिन उसके आगे श्रीलंका टूर से हमें नए कोच देखने को मिल सकते हैं। गौतम गंभीर के नाम पर विचार चल रहा है, देखते हैं बीसीसीआई उन्हें अपॉइंट करती है कि नहीं। उनकी कुछ शर्तें भी हैं, तो क्या उन शर्तों को बीसीसीआई मानेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शर्तें थोड़ी सी खतरनाक हो सकती हैं, और वो इंडियन क्रिकेट के हित में शायद ही ना हो। तो देखते हैं आगे होता क्या है। लेकिन राहुल द्रविड़ ही इज़ ए चैम्पियन कोच लाइक गैरी कर्सन। लेकिन गैरी कर्सन ने जो किया था भारतीय टीम के लिए, वो तो शायद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि 2011 जो 50 ओवर का विश्व कप था वो बड़ा माना जाता है, क्योंकि वो लॉन्ग फॉर्मेट होता है, 30 ओवर ज़्यादा होते हैं एक पारी में, तो 50 ओवर की तो कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन जो 2024 का T20 विश्व कप भारत ने जीता राहुल द्रविड़ की कोचिंग में, तो वो भी एक अलग ही वैल्यू रखता है। लेकिन किसी को किसी से आप कंपेरिजन नहीं कर सकते। 2007 बहुत लोग कह रहे हैं वो स्टार्टिंग था और अनुभव नहीं था, उससे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। जब स्टार्टिंग था तब तो और आइडिया नहीं होता है कि कैसे आपको उस फॉर्मेट में खेलना है। और भारत की टीम, ये मत भूलिए, काफ़ी यंग थी उस समय, और उसमें 2 ही 3 प्लेयर ऐसे, सहवाग, युवराज और हरभजन, 2 ही 3 प्लेयर ऐसे थे जो आप कह सकते हैं कि अनुभव से परे, अनुभव वाले थे। और उससे बाद जितने सारे प्लेयर थे, चाहे वो धोनी ही हों, वो उतने अनुभवी नहीं थे, लेकिन भारत जीता। और भारत ने दोनों मैचों में, पाकिस्तान वाले मैचों में, चाहे पहला मैच हो वो भी एक थ्रिलर था, ऑल आउट में भारत जीता, और फाइनल तो फाइनल था। पाकिस्तान उस समय काफ़ी मजबूत टीम थी, आज की तरह पाकिस्तान नहीं था। तो 2007 हो या 2024 हो, सबका अपना वैल्यू है। और 2024 भारत अनुभव वाला टीम ज़रूर थी, लेकिन भारत कई दफ़ा आकर के फाइनल में रह जाता था, लेकिन इस बार जो बैरियर था भारत ने तोड़ा और भारत चैम्पियन बना। तो वो पूरी तरह से श्रेय मैं राहुल द्रविड़ को देना चाहूँगा। जिस तरीके से कॉम्बिनेशन खिलाया गया, जिस तरीके से टीम चुनी गई, और इसके बाद फिर ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप कौन से कॉम्बिनेशन किस मैच में यूज़ करना है। सो हैट्स ऑफ द सपोर्ट स्टाफ एंड राहुल द्रविड़ सर। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और विक्ट्री सेलिब्रेशन ऑन क्रिकेट चैट्स विल बी कंटिन्यू। स्टे ट्यून, आई हैव अ ग्रेटेस्ट डे।